नमस्कार स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर बच्चों। एनसीईआरटी मैथ्स में क्लास 9 में चैप्टर 1 में जो नंबर सिस्टम है उसमें एक्सरसाइज 1.6 आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन द एक्सपोनेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. So, dear students, see this video at the last because I am going to explain the exercise 1.6. Three questions are there and how to fit the exponent formula to solve the questions. So, you have to be see the video at the last. If you like the video, if you understand the solution, if you understand the concept of how to fit the formula, exponent formula to solve the problem, so definitely like this video, share this video, and don't forget to subscribe to my channel. If possible, press the bell icon so the next video whenever is going to be uploaded you will be informed. So let's start the video again. So here the six questions are there. So different type of questions are there. Question 1, question 2, question 3. So before going to start this problems, some basic questions are there. You have to be um, understand about that. So I am going to choose the pen. So pen is okay. Now fine. Some basic formulas are there which is going to be used in the all these three questions are there, and there are subparts. Question number formula number 1: if a to the power m into a to the power n is given, means that base are same but the power m and n are different, so you will add the power. This is the simple formula. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बेस सेम है तो उसकी जो पावर है उसको जस्ट ऐड कर दीजिए, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे इंटीजर फॉर्म में हो, यू जस्ट ऐड इट. नेक्स्ट, सेकेंड सेकेंड ये है, अगर आपका बेस सेम है बट इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन दैट इज गिवन a to the power m whole to the divided by a to the power n, which means that it is just subtracted. सिंपल सी बात है, आप सब्सट्रैक्ट कर देना है. फॉर्मूला बहुत सिंपल है. सबसे मेन होता है कि हाउ टू फिट दैट फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चंस. which questions will be best suited for the which formula, you will simply identify that. I will explain. Question number 3: if power are same but base are different, you can see that a to the power m, b to the power m, but the base are different, so base is going to be multiplied. Simple. पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं. मैंने इससे पहले जो दो फॉर्मूला बताया, in that case the base are same but the power are different, they are going to be add, power is going to be add. Third question. Fourth question, fourth formula: a to the power m and b to the power m, means that in the form of division, so you can write a to the power whole to the power m. इसका मतलब होता है वाइस वर्सा कैन पॉसिबल्स, मीन्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस आर आल्सो पॉसिबल. जैसे सभी की ऑपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल्स है. अगर आप राइट हैंड साइड दिया हुआ है, यू इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म, यू विल डू. जब आप थोड़ा से हायर क्लासेस में जाएंगे, सो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म, ये होगा आपके साथ. तो इसलिए बी केयरफुल कि इसको आप अच्छे से सीख लीजिए. फिफ्थ नंबर, जैसे a to the power m whole to the power a most powerful, whole to the power n, whole to the power n. So इसको हम लोग लिख सकते हैं a to the power mn. Simple formula is there. So just remember each and every formula. I will going to explain it how to fit that. The question number 1, you can see that the question number 1, 64 whole to the power 1 upon 2. So which formula is going to be used here? So before that,
आई एम गोइंग टू, यानी इस तरीके क्वेश्चन है, इसके लिए हमको फॉर्मूला पहचानना है। तो यानी ये आपके लिए पेशेंट है यानी मरीज है, इसके लिए डायग्नोस करना है ये बीमारी है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हमको पहले देखना है कि कौन सा मेडिसिन फिर, क्योंकि आप डॉक्टर हो जो कि सॉल्व कर रहे हैं। तो 64 को अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट कि ये किस फॉर्मूला में फिट होगा, क्योंकि पावर के फॉर्म में है, बट हाउ द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेलेक्ट। सो द क्वेश्चन इज, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, वो है a टू द पावर m होल टू द पावर n। अगर ऐसा है तो फिर a टू द पावर mn कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी फॉर्मूला के लिए सुटेबल नहीं लग रहे। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास n इज गिवन, यू कैन सी दैट 1/2 मीन्स दैट n इज गिवन बट a टू द पावर m इज नॉट गिवन। देन हाउ टू जनरेट दिस a टू द पावर m? सो दिस इज द ट्रिक। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि कैन यू कन्वर्ट दिस 64 इनटू 2 फॉर्म और इनटू एनी काइंड ऑफ फॉर्म। तो यू कैन राइट जस्ट 4 into 4 into 4, you can see that 4 into 4 into 4 means that 64. Simple. Again you can write this 4 into 4 means 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So which is going to be, you can see that simple, 2 to the power 6. So you can write 64 as a 2 to the power 6 whole to the power 1/2. So you can see that how to generate a to the power m from this 64. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे आप लोग रुक जाते हैं और यहाँ पे आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलता है कि मैं a टू द पावर m को कैसे जनरेट करूँ। सो इस तरीके के जो थिंकिंग है ये अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखेंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 64 आपके पास है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं a टू द पावर कैसे जोड़ूं, तो आप सबसे मिनिमम फॉर्म में देखिए कि क्या हम इसको 2 के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन का जो अमाउंट देखते हैं, जब अमाउंट देखते हैं तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये किसके पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आप सॉल्व कर चुके हो। ये 9th का क्वेश्चन है जिसको आप बात करेंगे तो क्लास 7th 8th 6th में ये सब चीज़ें हम पावर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं कि 2 के फैक्टर्स में उसको कैसे लिख सकते हैं। तो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई दैट। तो मैंने जो लिखा है ये चीज़ें आपके समझने के लिए कि आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब नाउ come to the point 2 to the power 6 into 1/2. So which is going to be solved as a ये 2 into 3. So 2 to the power 3. So which is 8. So this is your answer. तो सबसे पहला ये हो गया। अब आ जाते हैं come to the point second question. Second question जो होता है आपके पास लिखा हुआ है 32 to the power 1/5. The question is that again कि हम इसको किस फॉर्मूला में फिट करेंगे। तो अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम, a टू द पावर m होल टू द पावर m। यहाँ जो आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें फिट करना है, बट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू जनरेट द a टू द पावर m। तो a टू द पावर m जनरेट करने के लिए 32 को अगर आप यूज़ करते हैं 32 को अगर आप 2 के फॉर्म में यूज़ करना चाहते हो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो इसका मतलब होता है आपके पास 2 to the power 5 अगर आप यूज़ करते हैं तो द 32 will be generated। तो इसका मतलब है 2 to the power 5 whole to the power 1/5 is equal to 2 to the power 5 into 1/5 which is going to be cut, so 2। So this is your answer। So सबसे पहला चीज़ आपकी बीमारी जो थी वो 32 to the power 1/5 था। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो आपने देखा कि कौन सा फॉर्मूला से ये ठीक होगा, यानी कौन से दवाई से ठीक होगा। आपने फार्मूला की पहचान की, मैंने आपको बताया a टू द पावर m होल टू द पावर n से ही सॉल्व कर सकते हैं। आप ये बोलोगे कि नहीं सॉल्व नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब माइन्यूटली चेक करेंगे तो पता चल रहा है कि हाँ 32 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पावर के फॉर्म में, तो उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, वैसे ही बनेगा, देखने से पता चल जाएगा। अब आप जब इतना सीख गए हो तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप क्वेश्चन को देख के ही उसका बीमारी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे 125 है तो द फार्मूला विल बी सेम, यानी a टू द पावर m होल टू द पावर m, इससे ही सॉल्व होगा क्योंकि बाकी कोई सा फार्मूला इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो 125 को हम लोग 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं?
यानी 125 जो होता है 5 का ही मल्टीपल फैक्टर्स है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, so which is going to be equal to 125, means that 5 to the power 3. So simple सी बात है, how to write the 125, 5 to the power 3 whole to the power 1 upon 3. So you just expand it by using the formula a to the power m whole to the power n, that is 3 into 1 upon 3, cancel, the 5 will be the answer. So स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम a to the power m whole to the power n फॉर्मूला को सपोज करते हैं, मतलब सपोज भी नहीं करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सो आप तो जैसे आप लोगों को थोड़ा पता चल गया कि कैसे होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी जैसे लिखा हुआ है 9 टू द पावर 3 अपॉन 2, तो आपको यहाँ पे मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगा। 9 को आप 3 के पावर में लिख सकते हैं, 3 पावर 2 होल टू द पावर 3 अपॉन 2, ये लिख लिया आपने। उसके बाद जो होता है आप इसको लिखेंगे, तो ये हो गया 3 टू द पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2, ये हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3 टू द पावर 3, तो 3 टू द पावर 3 मतलब हो गया 27। तो देखिए कितनी जल्दी से आप बना पा रहे हो ये, क्योंकि क्वेश्चन को देखा आपने, समझ में आ गया कि ये सीधे सीधे बात a टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्मूला में। अब यहाँ पे भी ये अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये भी एक सीधी सी बात है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है, होल टू द पावर 2 अपॉन 5 है, तो कौन से फॉर्मूला में फिट बैठेगा? कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला बैठ रहा है हमारे पास, a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो अब 32 जो होता है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि 32 टू द पावर 2 अपॉन 5, तो 32 टू द पावर 2 अपॉन 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, 32 को, तो ये मैंने लिख दिया, और होल टू द पावर 2 अपॉन 5, सॉरी 2 अपॉन 5 मैंने लिख दिया, ये हो गया। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 2 अपॉन 5, सिंपल सी बात, कट कट, तो यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर 2, तो विच इज 4, तो दिस इज योर आंसर। तो देखिए कितनी इजीली बन रहा है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 16 टू द पावर 3 अपॉन 4, ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो सिंपल सी बात है, कौन सा बेस, a टू द पावर m लाना है, 2 के फॉर्म में लिखना है, 2 टू द पावर 4 आता है, होल टू द पावर 3 अपॉन 4 आता है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 अपॉन 4, सो ये 4 और 4 जो होता है कट हो जाता है, तो 2 टू द पावर 3 आपके पास बचता है, विच इज 8। दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला इज सेम, इसलिए आपको जल्दी बन रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, साथ ही साथ दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। लिखता हूँ मैं, पहले मैं फर्स्ट फार्मूला पे ध्यान दूंगा। अब यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि सर ने तो मुझे माइनस वाला तो कोई फार्मूला बताया नहीं है, कोई बात नहीं है, वो वाला फार्मूला मैं यहाँ पे बताऊंगा, वहाँ पे मैं हो सकता है भूल गया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन को देख के मुझे याद आ रहा है कि एक और फार्मूला होता है जो कि मैं यहाँ समझाऊंगा, उसको भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो विच इज़ गोइंग टू बी इंक्लूडेड, सो सिंपल सी बात है, 5 का अगर फॉर्म में लिखूंगा तो 5 टू द पावर 3, ऑलरेडी मैंने इसको मेंशन, 5 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 125, तो इसका मतलब है 5 टू 125 हो गया, इसका मतलब होता है 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125, तो इसका मतलब 125 को 5 टू द पावर 3 लिखूंगा, और ये हो गया मेरा होल ब्रैकेट माइनस 1/3। सिंपल सी बात है, माइनस पे अभी ध्यान मत दीजिए, माइनस को छोड़ के 1/3 पे ध्यान दीजिए, माइनस हम बाद में, तो इसका मतलब नहीं है माइनस को लिखना नहीं है, माइनस को लिखना है, मैं बोल रहा हूँ उसको अभी सोचना नहीं है उसके बारे में। अब ये आपको सोचना है 3 इंटू, जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड जस्ट राइट डाउन 3 इंटू 3, माइनस इज ऑल्सो भी इंक्लूडेड, 5 टू द पावर -1 हियर, दैट इज गोइंग टू बी यूज हियर। तो इसका मतलब है, तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसको मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। रिटर्न बैक टू दिस प्रॉब्लम, इफ यू हैव ए 1 अपॉन a टू द पावर m, अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला वैल्यू होता है
तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a टू द पावर m मतलब पावर के फॉर्म में होगा, तो यू जस्ट राइट दिस a टू द पावर m माइनस साइन के साथ, और इट कैन बी राइट ऑपोजिट, आप ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर m। आपको समझ में आ गया होगा। सो हियर यू कैन सी दैट द सेकेंड a to the power minus n यानी 5 to the power minus 1, तो you can write here yes. So this is your answer. तो you can see that आपने यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किया है, और वो जो दो फॉर्मूला होता है वो ये है, ठीक है। अब एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी फॉर्मूला का यूज करते हैं देन जस्ट राइट दैट फॉर्मूला बिसाइड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जहां पे भी। अब जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ऊपर यहां पे आपने एक फॉर्मूला यूज किया, तो यू जस्ट राइट हियर एज ए कि बाय यूजिंग फॉर्मूला a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, यू आर यूजिंग ऐसे करके। सो जस्ट राइट दैट हियर फॉर्मूला कि 1/5 कैसे आया, बिकॉज ऑफ a to the power minus m is equal to 1/m। यहां पे कैसे आया, आपने यहां लिखा बिकॉज ऑफ a to the power m whole to the power n which is going to be a to the power mn। तो डियर स्टूडेंट, आप जब ये फॉर्मूला साइड बाय साइड लिखते हैं सॉल्व करने के बाद कि आप किस फॉर्मूला से इसको जनरेट किया है, सो यू विल गेट बेटर मार्क, 100% मार्क्स यू विल गेट। अगर फॉर्मूला छोड़ देते हो तो हो सकता है 1% या 1-2 नंबर आपके कट हो जाएंगे। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, जब भी आप सॉल्व करते हो तो स्टेप्स में आप ये फॉर्मूला को भी मेंशन कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर आ जाते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को देखने के बाद यानी ये जो मरीज है यानी डायग्नोस करने के बाद हमको पता चला कि ये बीमारी दूसरी है, इसके लिए फॉर्मूला भी दूसरा लगेगा। तो चलिए कौन सा लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ठीक है। अब आते हैं डायग्नोस करने के लिए। ये यहाँ पे बेस सेम है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी जिसके बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, सो यू विल राइट m प्लस n। सो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज। सो इसका मतलब है बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो 2 टू द पावर 3 प्लस 1/5। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि 2/3 प्लस 1/5, इसको ऐड करना है, फ्रैक्शन में है, तो 5-3 से एलसीएम निकालेंगे 15। अब 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो व्हेन यू डिवाइड 15 बाई 3 यू विल गेट 3 5 सा इंटू 2 मतलब 10 प्लस 5 3 सा इंटू 1 3 which is 13/15। So the answer is 2 to the power 3rd, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 to the power 13/15। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। सो वेन एवर यू आर यूजिंग फॉर्मूला यू जस्ट राइट हियर, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है तो मैं राइट करूंगा कि a to the power m dot a to the power n is equal to a to the power m plus n। So this is your formula. अब now come to the point, second question. The second question is 1/3 to the power 3 whole to the power 7। अब ये वाले के लिए आपको फिर एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था उस पर ध्यान देना है, कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप ध्यान देंगे कि ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब है बेस वैल्यूज आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट्स आर सेम। मैं ऐसा करके मानता हूँ, तो इस केस में हमारे पास दोनों के जो पावर है वो सेम, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। सो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो 1 है दिस इज 1, यानी दिस 1 इज योर a एंड दिस जो 3 टू द पावर 3 है दिस इज योर b। ये ऐसा करके सपोज करना है।
तो इस बेस पर अब अगर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3, यानी जो b है, होल टू द पावर 7, ये आपने लिख दिया। तो यानी आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया उसको आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि a टू द पावर b होल टू द पावर m, which is going to be a to the power m b to the power m। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस बेस पर आप जब इसको सॉल्व करते हो तो 1 टू द पावर 7 का मतलब होता है 1 होता है, और 3 टू द पावर, अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है तो इसको आप कन्वर्ट कर देते हो 3 into 7, so means that again the formula is a to the power m whole to the power n is a to the power mn. This is the formula is going to be used here. So you just write that 1 upon 3 to the power 21. So this is 3 to the power 21. This is your answer. So आपने देखा कैसे सॉल्व किया, तो ये ध्यान रखना है आपको कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। जब मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, सो थर्ड क्वेश्चन इज दैट 11 होल टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। सो अगेन द फॉर्मूला इज जो सिंपल सा है, a टू द, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो a टू द पावर m a टू द पावर n, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया a टू द पावर m माइनस n, ये है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये है तो इसको माइनस करना है। सो हियर 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। अब जैसे ही आप लिखते हो तो सामने इसके फॉर्मूला को लिख देंगे कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला है, ये आप भूलना नहीं है। अब 1/2 है, 1/4 है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने में आपके पास आ रहा है 4, तो यहाँ पे आ रहा है 2 टू ज़ा यानी 2, और यहाँ पे आ रहा है -1, सो विच मीन्स दैट 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ 11 टू द पावर 1/4 इज द आंसर। तो आपने देखा सारे आंसर कैसे आ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, ये वाला फॉर्मूला बैठेगा जिसका दोनों बेस, दोनों का पावर सेम है। देखिए ये और ये 1/2 सेम है, तो इसका मतलब है द बेस इज डिफरेंट। बेस इज डिफरेंट मतलब a इंटू बी होल टू द पावर m, सो विच इज गोइंग टू बी अप्लाई है, यानी अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। अप्लाई करने से क्या हो रहा है, 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1/2, so 56 whole to the power 1/2. So this is your answer. So student, आपने देखा how to solve the question. The question is that how to diagnose the problem by using your exponent formula. सबसे important होता है कि प्रॉब्लम को देख के सबसे पहले ये मैच करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सुटेबल है। अगर इसके लिए ये सुटेबल है तो उसके बेस पर सॉल्व करना है। और यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जैसे ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे, ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ भी मैंने आपको लिखा हूँ ये सब चीज़ें समझाने के लिए। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा समझाने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ ये कंपलसरी है, आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बना के दिखा रहा हूँ ये समझाने के लिए है, तो इसीलिए आपको नहीं सॉल्व करना है। वहाँ पे एग्जाम में ऐसा मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए था ताकि अंडरस्टैंड कर सको। मेन एग्जाम में ये जो बॉक्सेस है इनके अलावा जो चीज़ें लिखी हुई वो आप एग्जाम में यूज़ करेंगे। तो चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जो टॉपिक्स है यानी जो एक्सपोनेंट वाला पावर वाला टॉपिक्स है, फॉर्मूला को कैसे फिट करते हैं, अगर ये अंडरस्टैंड किया, आपको थोड़ा बहुत भी अच्छे से समझ में आया,
तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दूसरों को भी बोलिएगा, यानी जो भी आपके दोस्त है, जो भी क्लास 9, 8 या 10 के दोस्त है, उनको आप बोलिएगा, क्योंकि एक टॉपिक जो होता है कॉमन है 3 क्लासेस के लिए। पर्टिकुलर मैं ये एनसीईआरटी के क्लास 9 की बुक का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन ये क्लास 8 के लिए भी एप्लीकेबल है, क्लास 10th के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा या कोई भी प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं आपको उसको सॉल्व करके भी आपको कमेंट